Assalamu alaikum everyone. I'm Jasmine Nadeem and I'll be your host for this session. And before I get started, I hope I'm audible. My voice is not too high for those of you who are wearing hand free and not too low as well. Am I audible? Okay. So I'll start to share the screen.
Is my screen visible to everyone? Okay. Okay, everyone. So, again, my name is Tasmia Nadeem, and I'm from Industrial and Manufacturing Engineering Department, UAT Lahore. I won't be opening up my camera क्योंकि lightning इतनी अच्छी नहीं है. I hope मेरी presentation से सब clear हो जाए. So, in this presentation, I'm going to show you guys some of the mistakes I did when I started this journey. And क्या चीज़ें काम की थी, क्या चीज़ें नहीं काम की थी, an unfiltered walkthrough. Okay. Then I will show you guys about Upwork, about outreaching, which skills are in demand right now, and how you can pursue them. And we'll go further as well. So इस सब के लिए मुझे स्टार्ट में थोड़ा बहुत अपने बारे में जो मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी, काम की थी और जो काम नहीं की थी वो बतानी पड़ेंगी. This will be an interactive session. Okay, so I want all of you to be interactive. Ask me questions. जहाँ जिसी को कोई भी question हो, you guys can stop me and ask me. Okay, I'll make sure that I'll keep this super simple, and also you guys don't get bored. Okay, once again let me check. Okay, so wait a second, guys. Let me check one thing. Okay. So, I started this journey 14 months ago. And when I started this, I was in my first year of university and I knew nothing about freelancing. And now I have Elite Data Solution, my own business, in which I provide different services. I will tell wo kaun si services and Upwork Freelancing, एक Nepal based agency though, and we provide in UK and USA. मेरी अपनी NGO का project, 14 months of outreach and forecasting project according to my degree as well. इसकी भी एक back story है which I will tell you guys, and ignore the background voice if anything comes. Okay. And to make sure, this is not only for people जिनको freelancing के बारे में कुछ भी नहीं पता. This is also for those जिन्होंने अपनी freelancing journey start कर दी हुई है. Okay, so you guys can ask me questions as well as we go further. Okay, so this is my first review on Upwork, by the way, and all of the interviews that I had within the first week, only the first week. And these are the services that I provided in Elite Data Solutions. So, for those of you who don't know, this is a dashboard that I made for UK car dealers. वो लोग जो used cars को sell करते थे within the UK. I studied about their niche और मैंने उनके लिए ये एक interactive dashboard बनाया था. Most of you are on laptop, so I'll make sure कि ये zoom in हो जाए. As you guys can see, this was actually basically live. क्लाइंट अपना डेटा पुट करता था और यहाँ पे ये सब कुछ लाइव आ जाता था. स्पेशली दिस पार्ट एज वेल. दिस वाज द कूलेस्ट पार्ट बाय द वे. और इसके 4 पेजेस थे दो. देन दिस वाज फॉर बुटीक ओनर्स. आफ्टर कार डीलर्स मैंने ये बुटीक ओनर्स के लिए बनाया था. सेम थिंग बट entirely different niche. As you guys can see के थीम भी बिल्कुल डिफरेंट है. Okay. Then Flowstra, the agency that I am the part of. उनके लिए मैंने पहले बनाई थी website, and then now I'm part of that agency, by the way. And I will like to show you guys the website, and then I'll ask questions as well regarding this website. Okay, so it has music though, but I'll stop this music. This is the website. Okay. And the team is just 4 of us, by the way, in this team. And we're making an app for this website as well.
as it has different languages. I'm just showing you guys this because if you guys think कि मैंने कोई कोडिंग वगैरह सीखी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है. Actually ये मैंने completely AI से बनाई थी. AI prompt engineering, by the way. This is the website for them. Completely AI से बनी हुई वेबसाइट है. Took me around 3 weeks though, and I won't tell the charges over here, but मुझे कोई किसी किस्म की कोई कोडिंग नहीं आती थी. Most of the stuff I use AI in it. Very interactive stuff as well. I have built some for this workshop as well. Okay, then the NGO that I am the part of, I'm making a full software for them. This is the requirement. I have like hidden the name of the NGO, and the backstory is that I will tell you guys later about the backstory about why this is for my NGO, not for others. Okay. Then this forecast system. Just a quick overview. Those of you who are from mechanical engineering will know about this. This is just a version 1, and I included all of my professors in this, my seniors. I cold called manufacturers in the Pakistan. पाकिस्तान में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं मोस्टली सबको मैंने कोल्ड कॉल करके पूछा. इतना तो आप लोगों को पता होगा कि सप्लाई चेन हर एक बिजनेस की अपनी अलग होती है, तो प्रॉब्लम्स भी अपनी अलग होती हैं. आई वांटेड टू नो बिफोर आई स्टार्ट दिस. Okay. Now, about the हजार से ऊपर emails भेज चुकी हूँ, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इग्नोर हैं, obviously ghost हो चुकी हुई हैं, और highly personalized emails थी, by the way. All of them are mostly ignored. And I thought कि अगर मैं NGO को free में कुछ दूंगी ताकि मुझे रेफ मिल जाए, और ये मैंने 4 दिन पहले ही सोचा है, तो मैं अपने पेज पे इस बारे में पोस्ट कर सकते हैं. गेस व्हाट, आई गॉट गोस्टेड फ्रॉम देम एज वेल. यूएसए में जितने भी एनजीओस थी, मैंने उनको ईमेल्स भेजी दैट आई विल मेक समथिंग फॉर यू entirely free, and I got ghosted, but my own NGO said yes. अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं वैसे उसमें, क्योंकि एक येस फाइनलाइज येस नहीं होता, अभी प्राइस भी डिसाइड होनी है, और भी चीज़ें डिसाइड होनी है. तो दिस इज़ टू टेल यू गाइस के सिर्फ क्लाइंट के साथ बात करने में ही 3 हफ्ते चले जाते हैं, और एंड पे आके ना भी हो सकता है. ओके, प्राइस वगैरह भी सब फाइनलाइज करना है. ओके, नाउ दिस इज द कार डीलर दैट आई कॉन्टेक्टेड. मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी रखे हैं विद देयर नेम, बाय द वे, सम ऑफ देम. देयर वर डिफरेंट वेज जिसके साथ मैं जा रही थी. पहले मैंने नोट्स ऐप में एक जो पब्लिक डेटा पे उनके कार्स के बारे में कुछ देखा था, वो मैंने नोट्स ऐप में लिखा और फिर उनको मैसेज भेजा. ठीक है, सम ऑफ देम आई वर जस्ट टेक्सटिंग, हाईली पर्सनलाइज्ड मैसेजेस, बाय द वे. और ये वो तीनों लोग हैं जिन्होंने मेरी सर्विसेज के बारे में पूछा था. ठीक है, zoom on. He also said yeah, go on. And this guy, he actually complimented my services, and after even following up for like 3 to 4 times, even when they asked for my services, and I followed up a lot of time, I still got ghosted. सिर्फ ये 3 नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे ghost किया था even after asking for my services. कुछ हैं जिन्होंने directly no बोल दिया था. Okay. And this guy, he actually like voicemailed me that he is considering another software company based in the UK as well. And even when I told him that no, my services are much better, because at this point I was starting, and you guys can see that मैंने कितने लंबे पैराग्राफ लिखे हुए हैं. He still went with the other option. Then I found out something else, that I can make interactive stuff, and ये उसका positive reply है. This is a positive reply for a nail technician, by the way. So these are the both sides. Mostly you will get ghosted, you will have a lot of no's, and people will like it as well. Okay, after all of this thing,
I will go towards the skills. This was just an overview of what I have done and what I have not. So I will ask questions from you guys कि आप में से कोई है जिसने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो या इवन यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट या कोई ऐसे स्किल्स जो उनको लगे कि they can sell, anything, even anything rough. Is there anyone? Yeah, go on. अस्सलाम वालेकुम Walaikum assalam. मैम, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने समर ब्रेक में ना मैंने सोचा था इस बारे में और मैंने एक पोर्टफोलियो भी बनाया था। असल में मैं ना डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इस वजह से ना तो मैंने स्टार्ट किया था सॉलिड वर्क्स। तो इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया था और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो इस वाले से ना तो मैंने एक AI से पोर्टफोलियो बनवाया था और उसमें हर चीज़ जितने भी मैंने मॉडल बनाए थे ना, अच्छे वाले मॉडल जो मेरी फील्ड और मेरे इंटरेस्ट पर थे। जैसे कि मैंने एक बनाया था, इंजन बनाया था मैंने और उसके रिलेटिव मैंने बनाए थे, ठीक है। अब जब मैंने ना फाइवर पे गया तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो गया था, तो वो मैंने वहीं पे छोड़ दिया। ओके। ऐसा लगा जैसे कहते हैं ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये फेक हो सकता है, स्कैम्स हो सकते हैं, तो इस वजह से वो मैंने वहीं पे छोड़ दिया। हालांकि मुझे ये एक स्किल आती है। ओके, सो मतलब ये कि आपने थ्रू आउट द समर इस प्रोजेक्ट पे मतलब अपने स्किल्स पे काम किया और आपको वो बहुत अच्छा भी लगता है, आपके बातों से लग रहा है, और आप फाइवर पे गए एंड यू गॉट कंफ्यूज्ड, राइट? बिल्कुल। इसके लिए मैंने जो है पाइथन भी सीखी इस सेमेस्टर में, समर ब्रेक में, और जितनी सीखनी चाहिए थी, जितनी मैं सीख सकता था उतना मैंने ट्राई किया। फिर बाद में जैसे कि मेरा इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था और बाकी चीज़ों की तरफ चला गया, तो मैंने कहा ये टाइम वेस्ट नहीं किया। ओके, ठीक है। आई विल पिक यू अप अगेन इन द एंड। मैंने एक थोड़ा सा एक्टिविटी रखी है और मैं चाहूँगी कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, देन वी कैन गो थ्रू व्हाट यू डिड। ओके, तो अभी आगे जाके ये जो चीज़ें हैं ना सारी जो आपने स्टार्ट किया बट देन यू गॉट कंफ्यूज्ड, एंड उसमें दो तीन चीज़ें मैंने ऐड की हैं कि व्हाई डू पीपल एक्चुअली गेट कंफ्यूज्ड, इज मोस्टली बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड अदर स्टफ as well. I have added that. I'll cover that up as well. So I'll remember this और मैं इसको बार बार note down like बोलूँगी मैच करने के लिए, ठीक है, ताकि आप भी relate कर सकें. So these are the things that actually people do go through and मसला मतलब मैंने ये सब इसलिए बताया था ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने एक चीज़ ट्राई नहीं की, मैंने इन 14 महीनों में बहुत सी चीज़ें ट्राई की हैं, और इनके लिए तो मेन मसला ये था ना कि he got confused. For me it was rejection. बहुत ज़्यादा मैसेजेस ईमेल्स भेजने के बाद गेटिंग घोस्टेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट वाज समथिंग जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी और हो भी गई थी बहुत ज़्यादा बीच में। सो हर एक के लिए अलग चीज़ होती है, but I'll go on. I'm really glad कि you participated. Okay. Now about the skills यही हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे भी बोला कि सॉलिड वर्क्स विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मैं भी IME से हूँ। सॉलिड वर्क्स हमें भी 4th सेमेस्टर में सिखाया गया था, ठीक है, लेकिन उसमें मेरा इतना ध्यान नहीं है, इसलिए मैं एक्सेल और पावर BI इस तरह की चीज़ों की तरफ चली गई व्हेन आई वाज इन माय सेकंड सेमेस्टर। बट आप कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो ग्रुप्स बनते हैं प्रेजेंटेशन के या प्रोजेक्ट्स के, और उसमें एक बच्चा होता है जो बहुत जोरों शोर से काम कर रहा होता है क्योंकि उसको वो बहुत अच्छा लगता है। दैट इज समथिंग यू कैन आल्सो परस्यू जस्ट लाइक ही डिड। ओके, आई फॉरगॉट टू आस्क हिज नेम, आई विल गो फर्दर एंड आस्क इट। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, इससे पहले आई वुड लाइक टू हैव वन अदर इंटरैक्टिव थिंग with you guys. अच्छा, यहाँ पे 5 स्किल्स लिस्टेड हैं, इसमें से जो 3 हैं वो
उनका ट्रेंड है, ठीक है, और रहेगा भी। जो 2 हैं वो भी ऑन गोइंग हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी हुई है, और उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने गलती से दिखा भी दी थी, बट उसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं दैट आई वुड लाइक टू शो यू गाइस, ओके? सो इफ यू गाइस कैन टेल मी इवन इन द चैट और ओपन अप योर माइक एंड टेल मी कि कौन सी 3 हैं जो हाई डिमांड की हैं, और कौन से 2 हैं जिसमें सैचुरेशन थोड़ी ज़्यादा है और थोड़ा सा अकल से काम लेना पड़ेगा इनमें। Can you guys note this? Like, tell me, these are the ones over here. Anyone can open up their mic though. I think so. AI in engineering, video editing, आपकी and आवाज graphic design are on top. hello, या मेरा SolidWorks, AI engineering, data analysis. These are the 3 which are in demand. This is what you're trying to say? Okay, okay. Anybody else who would like to tell something? AI and data analysis are demanding. Okay, okay, okay. I'll show this now. By the way, you guys were right though, but if I go on this one. ठीक है, AI इंजीनियरिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मैंने आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल भी दिखाई थी वेबसाइट की जो मैंने बनाई थी कम्प्लीटली प्रॉम्प्टिंग से, ठीक है। दिस इज इंक्रीजिंग 109% एवरी ईयर, ओके। इट इज़ वेरी इन डिमांड, और ये वो चीज़ है कि आप लिटरली हर चीज़ में डाल सकते हैं, किसी भी फील्ड में डाल सकते हैं, और ये आप लोगों को आई थिंक एशर में भी सिखाया जा रहा है, सो दिस इज़ वेरी गुड। Try to add this even in your university projects. Try to add this even in your presentations and stuff. Then if I do SolidWorks, SolidWorks is something that is also in demand. अब इसकी एक रीज़न ये भी है क्योंकि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मुझसे आप लोगों से मिलोगे जिनको डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत अच्छे से आती है, बट दे डोंट हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मतलब वो बना तो देंगे चीज़, लेकिन उसका सिस्टम सारा काम कैसे कर रहा है दे वोंट नो। तो हमें उन पे एक लेवरेज ये है कि हमें सिस्टम्स और नंबर्स में पहले ही सब कुछ सिखाया जाता है कि हमने नंबर्स में कैसे सोचना है, ओके। जैसे उन्होंने भी SolidWorks स्टार्ट किया था, तो सो दिस इज समथिंग जो इंजीनियरिंग लेवरेज आपको मिल जाती है, एंड इसकी भी बहुत डिमांड है। 3D एनिमेशन की भी काफ़ी डिमांड है, लाइक ब्लेंडर एंड ऑल। मैंने ब्लेंडर भी सीखा था वैसे थोड़ा बहुत, बट आई गॉट बोर्ड बाय इट। देन डेटा एनालिसिस, data analysis, the thing that I do, Excel, Power BI and automation and stuff. अब आपको अगर नॉर्मल एक्सेल आता है ना तो वो ये है कि आपका बेसिक स्प्रेडशीट तो बन जाएगी लेकिन अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ काम करना है, स्पेशली दोस्त जिनका पूरा एक बिजनेस होता है, दे नीड स्टफ दैट इज ऑटोमेटेड, तो एआई को इंटीग्रेट करवाना उसमें भी बहुत नेसेसरी है। नाउ दीज आर द टू जिस अब इफ आई क्लिक ऑन ग्राफिक डिजाइनिंग, दिस इज समथिंग कि इसकी डिमांड तो ग्रो कर रही है, ठीक है, हर चीज में ग्रो कर रही है। वेदर आपने इंस्टाग्राम की स्टोरी लगानी है, बहुत से लोगों को आपको पता होगा कि वो इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट से टेम्पलेट्स डाउनलोड करके फिर जाके स्टोरी लगाते हैं। अगर हमने प्रेजेंटेशन भी देनी हो तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन अच्छा हो, डॉक्यूमेंट्री भी देनी हो उसमें भी हमारी यही कोशिश होती है, ठीक है। तो ये तो हर चीज़ में यूज़ होता है, बट मसला ये है कि इसमें हर कोई उठ के आ रहा है। दोज पीपल हु डोंट इवन नो अबाउट बेसिक्स, कलर्स, हायरार्की, एनी, मैंने उसकी एग्जांपल्स जानी जिनको पता भी नहीं होता और एआई के ज़रिए बस बना के डाल देते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेम इज़ विद वीडियो एडिटिंग, दिस इज़ ऑल्सो ऑन गोइंग। अब हर चीज़ ही विजुअल है। कंटेंट क्रिएशन मैं कहूँगी कि अगर आपने स्टार्ट कर दी है ना फ्रीलांसिंग, अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है तो लाजमी नहीं है कि आप अपने आप को भी सामने लेके आएँ, लेकिन कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग दैट आई वुड से कि आप बनाएं। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्लाइंट्स को भी पता लगता है, आपका एक सोशल पेज होता है जिससे लोग देख के आप, आधे क्लाइंट्स तो आपके सोशल मीडिया से ही आ जाते हैं। तो वीडियो एडिटिंग इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, बट अगेन नॉट द जेनेरिक वन, ओके। over here is an example I give. मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन there is like good design versus a bad design. Those of you who are learning know this, that color hierarchy matters, balanced layout, easy to read. These are the things that matter, okay? And this is the one that is a bad design.
And these are the example of the person I follow, or and he is really talented though. अब AI से उसने ये पिक्चर्स बनवाई हैं, ठीक है, AI से ये पिक्चर्स बनवाई हैं, and then he edited those pictures to look like this. You can literally see the colors behind it, and it's so amazing, right? And look at the number of likes as well, and he deserves it. बहुत ज़्यादा likes भी मिलते हैं. This is another example of the same kind. You guys can see over here, okay? तो बात ये है कि वीडियो एडिटिंग के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, आई नो सम पर्सन, ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, और उसने अपनी फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट की थी अराउंड 3 years ago, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग विद क्लाइंट्स इंटरनेशनली. एंड व्हाट ही डज ए कि उनकी जो भी वीडियो होती है ना, जो भी उसके फेवरेट पर्सन है उसके वीडियो उठाता है और स्टार्ट में उनका जो इंट्रो है ना उसको एडिट कर देता है, एडिट करके उनको भेजता है. अब ऑब्वियसली उनको अच्छा लगता है, देन दे हॉप ऑन अ कॉल विद हिम एंड देन दे हायर हिम, ओके. एंड like this is what you guys can do. इसका भी मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी कि how to in like contact the clients internationally as well, क्योंकि जो वेस्ट की मार्केट है it is very saturated. But जो लोग कहते हैं कि AI is going to take over my job, if you implement AI into your job it will make you grow. Like this is the example I gave you guys over here. AI से pictures बनवा के उसको edit किया हुआ है, okay. Video editing is something that also is growing, obviously. Now, before I go further, as I said, I will tell you guys why do people get confused. This is the main reason that I got confused. मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऊपर जाके एक चीज़ लिखी थी, हाउ टू मेक 10K a month यूजिंग AI. और अब जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं ना, तो इस तरह की रील्स आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगी. एंड लुक एट द नंबर ऑफ व्यूज़, ये तो कुछ भी नहीं है, तो मिलियंस में भी व्यूज़ जाते हैं, ओके. आई वुड से कि जो लोग आपको ये कहते हैं, ये क्लेम्स बनाते हैं, या वो लोग आपने देखे होंगे, दे रेंट अ लैम्बो, गो इनटू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स एंड सेल देयर कोर्सेज, ठीक है. ऑल ऑफ दैट, नन ऑफ दैट इज़ ट्रू. None of that is true. Making 10K a month, अगर इस तरह का कुछ होता ना तो मैं अब तक बहुत अमीर हो चुकी होती. ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है. The people who actually don't show you real client or failure or anything, and most of them don't, not this guy though, he does tell some stuff as well, but mute them, okay. इंस्टाग्राम के पेज हैं कुछ, दे आर बोरिंग. जो अपनी जर्नी दिखाते हैं ना, दे आर एक्चुअली बोरिंग, बट जो बोरिंग होते हैं ना वही आपको कुछ बता सकते हैं. और वन मोर थिंग, डिस्क्लेमर बाय द वे, अगर आप AI से भी बात करना शुरू करेंगे ना, अगर आप उसको चीज़ें बताएंगे तो इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ स्टफ विच हाईलाइट्स दिस अगेन. AI से बात करके भी वो, खास के जेमिनाई से, आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ AI. जेमिनाई इट ओवर हाइप्स यू, और when actually you start to get like क्लाइंट्स को ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है ड्यूरिंग फ्रीलांसिंग. तो आपको बहुत सी इस तरह की वीडियोस भी मिलेंगी कि एक प्रॉम्प्ट से आई फाउंड 1000 क्लाइंट्स इन द USA, आई फाउंड ईमेल्स ऑफ 1000 क्लाइंट्स इन द USA. नन ऑफ दैट इज ट्रू. एक प्रॉम्प्ट से 1000 क्लाइंट्स ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं होता, उनकी ईमेल्स ही नहीं मिलती, ओके. Okay. Now that I have told that disclaimer, this is the thing that actually makes people confused a lot. Instagram, YouTube lectures, Facebook. I don't use Facebook by the way, but these are the things के यहाँ पे बहुत ओवर हाइप है, बहुत ज़्यादा है. इनके कमेंट्स देखोगे तो वो CTA यूज़ करना भी इम्पोर्टेंट होता है, बट दिस इज समथिंग दैट मेक्स पीपल कंफ्यूज अ लॉट. यूट्यूब पे जाके कोई कोर्स देखना शुरू हो जाओगे, ही विल स्टार्ट yapping for 3 hours straight and tell you nothing, especially about freelancing. I didn't mention what freelance is. If somebody who's new and doesn't know, freelance is something, sorry if I didn't mention in the start, freelance is something that you sell your product to someone internationally or nationally, okay. This is something that freelance is, if I put it in really easy words. You sell your product or your services. आप उनके लिए graphic designing कर सकते हो, videography कर सकते हो, and all that stuff, okay. Now these are the examples of kind of dashboards that I have make. ये sales का है, मैंने अपने client के लिए बनाया था 3-4 colors में. This is my favorite one for war impacted people जो war zone area में है. गजा का मैंने sample लिया था, ठीक है. This is something कि इसमें ना बहुत एहतियात करनी पड़ती है, so I wanted to see
कि एक नंबर भी इधर उधर हो तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं. दिस इज़ व्हाट आई मेड फॉर द वॉर impacted people. And I used to watch Doraemon when I was young. तो मैंने उसका भी एक डैशबोर्ड बनाया था. जब मैंने एक्सेल स्टार्ट किया था, it was boring for me, but जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था मैं डेटा विजुअलाइजेशन की तरफ आ गई थी. डेटा को, बोरिंग नंबर को इतना इजी कैसे बनाना है कि क्लाइंट को 3 सेकंड के अंदर अंदर पता लग जाए कि उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा. ओके, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली एंजॉयड डूइंग. सो अगेन, जब आप यूनिवर्सिटी में अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो आपको पता लगता है कि कौन से स्किल्स आपके लिए, कौन से स्किल हैं जो आपका अपना है और जो आप सेल भी कर सकते हैं. और डेटा एनालिसिस का थोड़ा सा पाथवे मैं दे दूँ, इफ somebody wants to go to that side. First thing is this, obviously, first and foremost is Excel. Then Power BI for data visualization. Power BI से बिल्कुल related ही Looker है. अगर आपको Power BI आता है तो Looker is nothing. Then SQL and Python. Python is something that as he told, SolidWorks में भी add होता है और इसमें भी लाजमी. My teacher actually hyped me up when I told him कि मैं Python भी learn कर रही हूँ. ठीक है, और यूनिवर्सिटी में वैसे काफ़ी कोडिंग लैंग्वेज सिखाई भी जाती हैं, आर लैंग्वेज भी सिखाई जाती है. सो लर्न दोज लैंग्वेजेस. ओके, क्वेश्चन था यहाँ पे एक. ओके, नाउ आई हैव टोल्ड यू गाइस अबाउट द स्किल्स. For each and every skill, give it at least 2 months. क्योंकि अगर आप किसी स्किल को आपने सीख लिया और आपने जाके किसी क्लाइंट को पिच भी कर दिया और उसने हाँ भी कर दिया, लेट्स जस्ट से, और आपने उसको बना दिया, स्पेशली अगर आप फाइवर पे हैं या स्पेशली अगर आप अपवर्क पे हैं, अगर आपको एक बुरा रिव्यू मिल जाता है तो उससे जान छुड़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता. आपकी जो हेल्थ है ना अकाउंट की, वो -100 में चली जाएगी अगर आपका पहला रिव्यू बुरा है. ठीक है, तो एटलीस्ट गिव योर स्किल्स 2 months of practice. Make a demo about it. As I told you guys, the example of the guy जिसने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की थी. कोई भी अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जो थी वो करती थी ये डेटा एनालिसिस एंड स्टफ, तो केगल से या मेसी डेटा किसी छोटे बिजनेस के जाके मैंने शॉप्स को भी अप्रोच किया हुआ है, उनका डेटा लिया, उसको खुद क्लीन किया और उसका एक डैशबोर्ड बनाया. केगल पे भी आपको सैम्पल डेटा मिल जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं. अब वीडियो आप किसी भी अपने फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो उठाएं, उसको शुरू में एडिट करें, ठीक है, एंड सी दैट हाउ इट गोज. बिकॉज my workshop says, like the poster says one thing, that learn skills faster. This is the only approach that can make you learn skills faster. When you're actually in it, it's different. जब आप चीज़ को खुद करते हैं आपको पता लगता है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ गलत नहीं है. और जब आप क्लाइंट से भी बात करेंगे तो उसको भी पता लगेगा कि नहीं इसने काम किया हुआ है, क्योंकि थ्योरी और काम दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं. वर्क ऑन डिफरेंट स्टफ. एक आपने वीडियो एडिटिंग किसी यूट्यूबर की है तो अब आप किसी और की करने हैं, ठीक है. मेक इट डिफरेंट, ट्राई टू मेक इट वर्सेटाइल इन द स्टार्ट, ताकि जब क्लाइंट आपसे बात करे तो उसको पता लगे कि नहीं, दिस गाय हैज़ नॉलेज. ओके, as per for outreach, there are different types of outreach. Outreach की डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत बहुत लंबी बात हो जाएगी. लेकिन for outreach there are different channels. LinkedIn, cold email, Instagram and cold calling. Basically आप इन चीज़ों के ज़रिए लोग क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं, ठीक है. और उसमें भी टाइप्स होती हैं. कोल्ड डीएम हो सकता है, वार्म डीएम हो सकता है, रिप्लाई टू स्टोरी. कोल्ड इज समथिंग कि यू आर अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, जैसे आप किसी को भी जाकर सामने को बोल दो और वो आगे से पूछेगा कि भाई आप कौन हो, सेम थिंग, लिटरली सेम थिंग. ओके, इसका तो चांसेस बहुत बुरे होते हैं, अनटिल अनलेस पर्सनलाइज्ड, फिर भी बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि वेस्ट में even if it is a small business, they are getting around 15 to 20 DMs daily plus so many emails. तो अगर आप बहुत personalized भी जा रहे हो ना तो फिर भी chances हैं you will get ghosted. Okay, warm DM and reply to story, इन हर एक का अलग response rate होता है. warm DM की मैं आपको एक example दे देती हूँ. This was someone who I used, like मैंने इससे बात की थी, ठीक है. She was a business and like she had scrubs, yeah, she sold scrubs, and I talked to her and she told me a lot about her problems and stuff. As you can see कि मैंने वही चीज़ यहाँ पे mention की है कि आपने मुझे अपनी problems के बारे में बताया था. And then I made a simple dashboard for her.
and then I send it over to her. Okay. And eventually, we booked a call with her on my agency, made her this website, and sold it to her. This is an example of warm DM. मैंने एकदम से जाके उसको पिच नहीं कर दिया था अपने वेबसाइट के बारे में. पहले मैंने बात की, फिर मुझे प्रॉब्लम का पता लगा, फिर मैंने डेमो बनाया, उसके बाद I talked more and then eventually we sold her. Okay. Anybody has any questions until now? If anyone has any questions, feel free. I hope I'm not boring you guys out, okay? This is Upwork. पहले तो मैंने Upwork के बारे में बताना था, but I'll tell some things about Fiverr as well. मैंने personally Fiverr तो नहीं try किया. ना मेरा कोई इरादा है Fiverr try करने का for my own personal reasons. But for those of you who don't know, Upwork and Fiverr is actually के Upwork पे क्लाइंट्स जॉब पोस्ट करते हैं और आप करते हो, ठीक है, आप सीसीवी पढ़ते हैं, मतलब इस तरह का. This is how I contacted. आप screenshot भी ले सकते हैं. This is how I contacted my first client who hired me on Upwork. Okay. वो जॉब पोस्ट करेंगे, आप उसे रेलेवेंट जाके बताओगे कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, और अगर उनकी मर्जी होगी वो आपको मैसेज करेगा, आपकी बातचीत होगी. ही कैन आल्सो इंटरव्यू यू कैमरा ऑन करके, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है. फाइवर में ये होता है कि आपने प्रोफाइल बनाई होती है और क्लाइंट आपके पास खुद आता है. अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ मैं जाऊंगी, ठीक है. आप अगर आपने अपवर्क पे या फाइवर पे प्रोफाइल बना दिया, आपने उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, आई विल गो टुवर्ड्स दैट, एंड दैट इज समथिंग कि अपवर्क और फाइवर दोनों के लिए सेम है. मैं इसकी थोड़ी बहुत एग्जांपल खुद भी दूंगी जो मैंने भी चीज़ें गलत की थी. ओके. ये है मेरी अपवर्क की प्रोफाइल. ओके. जैसे क्विक रिव्यू. 0 testimonials, 0 certifications. Okay. This is my Upwork profile. And I left Upwork for some while though. This is my bio and everything. So, अच्छा, one thing is for those of you who know and those of you who don't know कि आपका जो ये टाइटल है ना, इसमें आपने अपने बारे में कभी भी नहीं लिखना. इसमें आपने हमेशा अपने जो आपको स्किल्स आते हैं, जो आपको टूल्स आते हैं, उनको लिखना है. क्योंकि जब कोई मुझे अगर फॉर एग्जांपल पावर बीआई से रिलेटेड कोई काम चाहिए तो मैं जाके सर्च करूँगी पावर बीआई इधर, ठीक है. टैलेंट में जाके यहाँ पे पावर बीआई सर्च करूँगी. ओके. एंड देन वो सारी जो प्रोफाइल्स हैं वो आ जाएंगे सामने. तो आपने हमेशा यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने हैं. एंड फॉर दिस आई विल सजेस्ट कि आप टॉप प्रोफाइल्स पे जाएं. अब मैंने यहाँ पे पावर बीआई सर्च किया और ये देखें टॉप प्रोफाइल्स आ गई. टॉप प्रोफाइल्स पे जाएं जो आपकी नीश के विदन है और उनको जाके कॉपी करें. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ये है, देयर आर 2 people. One is this girl and second in this one. She had only one job, $60 earned. She has many, 300 plus earned. अब इसमें एक बिगिनर्स के लिए अच्छी बात ये है कि फाइवर और अपवर्क दोनों में ये होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने बहुत से पैसे कमाए हैं तो ही आपकी जो प्रोफाइल है वो ऊपर आएगी, या अगर आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो ही ऊपर आएगी. अब इनका सक्सेस रेट भी देखें, कोई नहीं है. His is 81% and the ones who actually have 100% उनकी नीचे जाके आती है, ठीक है. It depends कि आपने अपनी कितनी ऑप्टिमाइज की हुई है. कल जब मैंने चेक की थी, she was over here on the second number and she was on the first number. Okay. Now if I open her profile, some things over here, if I highlight those, you guys can see कि again इसने अपने टाइटल में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो उसके बारे में, which is good. Some things which are wrong over here,
Bad data systems cost businesses hour every week. I build the ones that don't. This is generic. This is something कि आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, ठीक है? Doesn't highlight anything कि वो क्या करती है, क्या नहीं करती, क्या strengths हैं, कौन से tools use करती है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? और फिर उसी को आगे 3 लाइनों में और डिफाइन किया हुआ है और फिर गैप देके एक लाइन में और डिफाइन किया हुआ है. This is something a client will only give your profile 5 seconds. That is it. अगर 5 seconds में उसको कुछ अच्छा मिल गया, he will stay more. वरना he will go. Okay, 5 seconds से ज़्यादा नहीं कोई भी देता. This was unnecessary. Okay, then she said 1.5 years of hands-on experience and all that stuff. This is something that's good. Power BI in business intelligence, what I can help with. ठीक है, how I work, why clients choose me. Let's talk. Something that is actually long, but it's optimized. This is good. Plus, she has a video as well. On Fiverr as well, आपको अपनी प्रोफाइल में कीवर्ड्स ऐड करने हैं. आपकी नीश में जो भी टॉप लोग आते हैं ना सर्च करके, उनकी प्रोफाइल देखें और उसको कॉपी करने की कोशिश करें. और ये नहीं कि आपने एक दफ़ा कर दिया तो बस हो गई. एक हफ्ते बाद आपने जाके फिर ऑप्टिमाइज करनी है. अपने डेमोज ऐड करें, वीडियोज ऐड करें. दिस इज समथिंग दैट रियली गुड. शी एडेड हर वीडियो. ओके, same with this. Her, sorry. This is not long. This is not much long. But one thing is कि अगर उसको Power BI आता है तो Power BI में एक चीज़ यूज़ होती है DAX. She can highlight that as well. Okay. जो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है. जैसे अगर एक्सेल है तो उसके अंदर एक्स लुकअप होता है या वी लुकअप एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? वो भी आपने हाईलाइट करना है. दिस इज समथिंग व्हिच मारिया डिडंट डिड. ओके, शी हैज हाईलाइटेड एवरीथिंग ओवर हियर. हर core skills, then Microsoft Fabric अलग से. Why this is the section this is really good. Why clients work with me. 180 plus successful BI and analytical projects, long-term support, maintenance, everything is highlighted. Within 5 seconds, the client can know कि क्या ठीक अच्छा है क्या नहीं. 2 jobs and $300+ earned. Okay. And now this is my profile. As you guys can see, this is really short. I built automated Power BI dashboards and app script tools that streamline operations. This line is good, and then this line is again what I told you guys, generic. This was not needed at all. कोई proper headings वगैरह भी नहीं है कुछ, and it is really short. मैं अपनी खुद की example देके आपको बता रही हूँ, ठीक है? As compared to if I come over here, ये मैंने अपने वाले को ही ऑप्टिमाइज करके लिखा हुआ है. पहली लाइन में अपने टूल्स लिखने हैं, ठीक है, जो आपका टाइटल होगा. दूसरी लाइन में उनको डिफाइन करना है. उसके बाद व्हाट आई डिलीवर, व्हाई क्लाइंट्स वर्क विद मी, दैट्स इट. हाईलाइट व्हाट यू कैन डिलीवर एंड दैट्स लिटरली इट. देन मेक योर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज इन सेंस डेमोस. स्टार्ट में मेरे ऐसे होते थे प्रोजेक्ट्स, बट यू हैव टू स्टार्ट. ओके, एंड दिस इज द लेटेस्ट वन. Loom वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की हुई है. व्हेन यू अपलोड समथिंग लाइक दिस, अ प्रोजेक्ट, उसकी वीडियो या पिक्चर्स अपलोड करते हैं तो आपने उसको थोड़ा सा पैराग्राफ में लिखना है और जो स्किल्स हैं उनको ऐसे हाईलाइट करना है. इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर BI यूज़ हुआ है, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस, गूगल शीट ऑटोमेशन भी मैंने इसमें यूज़ की थी. ओके, एंड दिस इज, एंड देन go versatile. One more thing, if you are applying for a job, this is a proposal I wrote. Okay, you guys can read it as well. If you are applying for a job, आपने कभी भी अपने स्किल्स के साथ शुरू नहीं करना कि मुझे ये आता है. हमेशा अगर क्लाइंट की जॉब बहुत इजी थी तो ट्राई टू समराइज इट इन वन सेंटेंस लाइक आई डिड ओवर हियर. ओके, अगर इतनी इजी नहीं है और उसने कोई स्पेसिफिक चीज़ बीच में मेंशन की हुई है रिक्वायरमेंट्स में, आप उसमें से एक चीज़ उठा के उसको पहली लाइन में मेंशन करें ताकि उसको पता लगे कि अच्छा इसने मेरी जॉब पोस्टिंग को गौर से पढ़ा है. ठीक है, AI से नहीं लिखवानी आपने ये. ट्राई टू रीड इट ऑन योर ओन. उसके बाद व्हेन
you actually read the job posting. फिर आपने क्लाइंट को एक पैराग्राफ में ये बताना है कि आप उसकी चीज़ को easily solve कैसे करेंगे. Make the client imagine कि आपने उसका काम कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है. She literally liked my idea and she literally mentioned as well कि मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने mention किया है, ठीक है. Make the client imagine कि आपने उसकी job को easily solve कैसे कर देना है. और main thing, write this down somewhere. businesses के लिए सबसे पहली priority यही होती है कि उनका time और उनके पैसे save हो. अगर आप हर एक job posting में, अपनी gigs में भी, अपनी profile के bio में भी ये चीज़ लिख देंगे कि manually उनका टाइम बहुत कम हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, ठीक है. एंड एआई कैन मेक लिटरली एनीथिंग ऑटोमेटेड नाउअडेज. तो फिर एंड इफ द क्लाइंट इमेजिन्स दिस, ऑब्वियसली दे विल टेक्स्ट यू. ओके, कीप इट शॉर्ट एंड देन जो रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स आप अटैच कर दें, ठीक है. फाइवर पे तो आपने प्रोफाइल बना दी है और आप देखें कि मार्केट में इस टाइम आपकी नीश के अकॉर्डिंग ट्रेंड क्या चल रहा है फाइवर पे, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह हाईलाइट करें, अपने गिग्स को अपडेट करें, ठीक है. अपवर्क पे आपको ये हर एक के लिए पर्सनली चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंट जॉब पोस्टिंग के लिए डिफरेंट. और अगर आप डेमो बना सकते हैं ना उनके लिए उसी टाइम, ठीक है, तो अगर किसी ने कोई जॉब पोस्ट की है और आप डेमो बना सकते हैं तो आप वो डेमो बनाएं और उसको कहें that I solved this problem for you. Is someone trying to speak? Okay, I will. Wait. Yeah, sure. Sorry, guys. Okay. I will answer this question first since I'm on Upwork. Okay, मैंने वो graphic designing वाला भी पढ़ लिया, which is somebody says that it's not in demand, and about gigs as well. Okay, so yeah, you have to buy Connect over here. It is called Connect. आप $10 के भी खरीद सकते हो in the start. आप $15 के भी खरीद सकते हो, आप $20 के भी खरीद सकते हो, ठीक है. और अगर आपने एक स्पेसिफिक नीश सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने डेटा एनालिसिस सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है. अपने बायो में तो आपने सबसे पहले यही लिखना है कि आई एम अ डेटा एनालिसिस्ट एंड दीज आर द काइंड ऑफ टूल्स आई नो. अगर आप उसमें वीडियोग्राफी और ग्राफिक डिजाइनिंग भी लिख देंगे, दिस इज समथिंग क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको आता क्या है, ठीक है. वन स्पेसिफिक नीश, और उस नीश में different tools भी आप यूज कर सकते हैं, बट आपने everybody knows, but I have seen examples of these as well on Upwork and Fiverr. Okay, then you buy Connect. $10 के कम आते हैं I guess, $15 के, $20 के, whatever is in your budget. In the start you can experiment as well. You have to buy Connects, then you have to apply to jobs. कोई जॉब 9 कनेक्ट की हो सकती है, कोई 10 की हो सकती है. Show you guys over here. Wait. Okay, this is a Power BI job which was posted yesterday. 50 plus proposals. Okay, one more, 20 to 50 proposals. इसमें कुछ चीजें हैं. Whenever you are applying to a job, especially as a beginner, आपने कभी भी उस जॉब पे नहीं अप्लाई करना जिसके 50 प्लस प्रपोजल्स होंगे. इवन 25 to 50 प्रपोजल्स वाली जॉब पे भी अप्लाई नहीं करना, ठीक है. ऑलरेडी इसमें लोग होते हैं जिन्होंने
सॉरी, ऑलरेडी लोग होते हैं जिन्होंने बूस्ट भी किया होता है, ठीक है। बूस्ट करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप जब जॉब अप्लाई करने लगते हैं ना, तो उसमें आता है कि फर्स्ट रैंक पे जाने के लिए आपने बूस्ट करना है या नहीं, और उसके लिए आपको कनेक्ट लगाने पड़ते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप स्टार्ट में वो ना करें, ठीक है। 20 to 50 भी नहीं ना, ट्राई के 5 हो या हद 15 तक हो, ठीक है। जब भी कोई जॉब पोस्टिंग नहीं आए, आप उसके ऐप होगी तो आपको वैसे शुरू में खरीदना पड़ता है, तो आप हर 2 घंटे बाद आप खोल के देखें या वो टाइम देखें जिसमें जॉब्स आती हैं, खासकर रात के टाइम आती हैं, आधी रात को, या 5-6 बजे आती हैं सुबह के, ठीक है। एट दैट टाइम मेक श्योर कि जिधर आप अप्लाई कर रहे हैं पेमेंट इज वेरीफाइड, ओके। अनवेरीफाइड पेमेंट, see, payment is verified, 3K plus spend. If I look at his job posting, okay, 67% हायर रेट। जिनका हायर रेट भी कम होता है ना, मतलब अगर उन्होंने 10 जॉब पोस्ट किया और उसमें से सिर्फ उन्होंने 2 पे लोगों को रखा है, तो मोस्टली वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। मैंने इसके पीछे अपने कनेक्ट बहुत ज़ाया किए थे स्टार्ट में नहीं, अपने सेकंड क्लाइंट के लिए, कि जिनकी पेमेंट भी वेरीफाइड, पेमेंट तो वेरीफाइड होती थी बट लाइक हायर रेट ज़्यादा नहीं होता था, और मैं जॉब पे अप्लाई कर देती थी और इवेंचुअली वो सब कोई गोस्ट कर देते थे, ठीक है। आपने ये देखना है कि उनका हायर रेट ज़्यादा हो, 80+ हायर रेट होना चाहिए, ताकि अगर आप जॉब पे पोस्ट करें तो वो बंदा सीरियस है, क्योंकि मोस्टली लोग जॉब पे पोस्ट करते हैं और उसके बाद दे जस्ट फॉरगेट अबाउट द जॉब दे पोस्टेड, ओके। अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। These are the few things to keep in mind when you are applying for a job, क्योंकि यहाँ पे ना आपको अपने कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़रा बहुत सोचना पड़ता है while applying to jobs. And as I told you कि this is the method that works. आपने बहुत लंबा नहीं लिखना प्रपोजल, जब भी कोई जॉब आए उसको गौर से पढ़ें, ट्राई टू समराइज इट इन 1 सेंटेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद मेक द क्लाइंट इमेजिन कि आप आसानी से उसका काम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका जो काम उसने पोस्ट किया है वो 3 महीने बाद कैसा लगेगा। मेक द क्लाइंट इमेजिन दिस, ओके। एंड रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स जो होंगे उसको आप साथ कर दें। अगर आप डेमो बना सकते हैं तो आप सिंपल डेमो लगाएं, कह दें कि मैंने आपका काम ये पहले ही स्टार्ट कर दिया है, अब बस मुझे आपके डेटा चाहिए, एंड देन इट विल बी डन। See over here, I highlighted again, can have this ready within 48 hours. As I mentioned, for business, they need time to be saved. And by the way, ये $30 का project था जो end पे जाके 130+ bonus हो गया, okay. So this is a proposal over here. You have to buy Connect, बट स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप अप्लाई करेंगे ना, अपवर्क इज स्लो आई नो, और अपवर्क पे आपको पैसे भी लगाने पड़ते हैं, बट देयर आर पीपल एंड मेनी एजेंसीज एज वेल जो अपवर्क पे बहुत ज़्यादा कमा रही हैं, ठीक है। एंड कंसल्टेंसीज की भी एक चीज़ अपवर्क पे शुरू हो गई है, फिर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आप बना के अपने पेज पे रख सकते हैं, जिसने भी ख़रीदना होगा ही विल जस्ट बाय दैट प्रोजेक्ट और विद इन 2 डेज। उसमें ये होता है कि आपको क्लाइंट को अप्रोच नहीं करना पड़ता, वो आएगा, आपका प्रोजेक्ट खरीदेगा, आप बस उसमें उसका डेटा डाल के उसको दे दें, दैट्स इट। ये भी एक चीज़ है अपवर्क पे। अगेन स्ट्रैटेजी फॉर फाइवर गिग्स एज वेल, समबडी आस्क्ड, यू नीड टू ऑप्टिमाइज इट कीवर्ड्स ऐड करके, ठीक है। इफ आई ट्राई टू ओपन फाइवर ओवर हियर, I hope I answered. Is there any more confusion regarding Upwork? I'll see the gigs now. For example, if I type video editing, my net is slow. Okay, these are the profiles that came at the top. You guys can see over here, okay? I can't load right now. But I will
be your video editor, SEO expert, and YouTube manager. Okay, I will do professional video editing. I will provide high quality YouTube video editing. You can see that these are the people. She is on 4.8 and he is on 4.9, or definitely more than her, but she's on the first one. Again, मैंने वो जो example दी थी Upwork की, you have to optimize your profiles again and again. And one thing about her कि एक niche specific कर दी है, YouTube manager, not a generic video editor. She can do SEO as well, okay, and she can manage the YouTube as well. That's the core point about her. और यहाँ पे ये videos हैं. My net is not, it's not loading right now. ये वो चीज़ है जिसको लोग पढ़ के आपके प्रोफाइल पे आएंगे. ये पिक्चर है जो लोग क्लाइंट्स देखते हैं मोस्टली. ओके, फिर ये जितनी ये भी आपकी वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही, फाइवर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही होती है. ये बेसिकली आपने एक किस्म का अपने बारे में जो भी है ना वो एक पिक्चर में बनाया होता है, पोस्टर टाइप. ठीक है, ये जितना इंगेजिंग होगा, जितना आई कैचिंग होगा, लोग इसको क्लिक करके, मोस्टली लोग तो इसी को देख के आते हैं, इसको तो कोई पढ़ता भी नहीं है. ठीक है, this is something that this is summarized to AI, by the way, about the gig, and this is her profile and the portfolio she has. You guys can do this on your own as well after this session, or go and search the top profiles within your niche. Even on Upwork आप sign up करके जा सकते हैं. ठीक है, और Fiverr पे भी, Fiverr और Upwork के अलावा भी बहुत से हैं आजकल, but these are the ones that are like in demand. Mostly clients इधर ही आते हैं, दूसरों में आपको वेट बहुत करना पड़ता है. मेरे कुछ profiles हैं, but Upwork and Fiverr is the one that works the most. Fiverr पे आपको पैसे नहीं लगाने पड़ते, but आपको अपनी प्रोफाइल को बार बार ऑप्टिमाइज करना पड़ता है. ठीक है, like over here, this is the thing that people will see, the picture, the video, this is the thing. Okay, अब Fiverr पे clients आते हैं, you just have to optimize your profile again and again. मैंने Fiverr कभी use तो नहीं किया. I hope I answered your question. Is it worth buying freelancer? I would say in the start it is not worth buying Freelancer Plus in Upwork. I didn't actually do it. Even boosting when you are applying for jobs, it is not worth it. ठीक है, आप start में at least 5 reviews लेने की कोशिश करें. ठीक है, each of them should be 5 star. Each of them should be 5 star. और मोस्टली आपको 5 स्टार बड़ी आसानी से मिल जाते हैं अगर आप क्लाइंट से अच्छे से बात करें. मेरी जो सबसे पहली क्लाइंट थी, मैंने बहुत दफ़ा उनके लिए चेंज किया है. पहले वो कुछ और कहती थी, फिर वो कुछ और कहती थी, बहुत दफ़ा मैंने चेंज किया. तो ऑब्वियसली आपको स्टार्ट में थोड़ा सा पेशेंस करना पड़ता है. ठीक है, बट दे आर रिस्पेक्टफुल दो. इट्स नॉट दैट दे वुड डिसरिस्पेक्ट यू, बट इन दी स्टार्ट इट्स नॉट वर्थ इट बाइंग फ्रीलांसर प्लस. ओके, finally, this is a video editing demos. You guys can go and check these as well. This is good though. She's good. Or her though. Okay, so आपकी कोई भी नीश है, आप उसमें जाएं और जाके टॉप प्रोफाइल्स को सर्च करें. ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी जाएं, सर्च करें कि जो लोग, जिनके कंटेंट लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. ट्राई टू कॉपी इट. आई वुड सजेस्ट के डू कंटेंट क्रिएशन. Then on Upwork as well, on Fiverr as well, and try to optimize it every week. Okay, and yeah, Upwork is slow though, and can cost money. I have a full PDF for it that I made some months ago. You guys can message me on WhatsApp and I'll send it over. Okay, this is a QR code. Now, if I come to the most important part, common mistakes for those who are just starting and for those who are earning. Start में तो ये होता है कि हमें लगता है कि हम ready नहीं है, अभी ज़्यादा आता नहीं है. Waiting to feel ready. Pricing too high होती है, proof कोई नहीं होता, and the pricing is very high. Okay, review नहीं होता. And for those who are already earning,
अंडर प्राइसिंग, अगर आपने अर्निंग स्टार्ट कर दी है, यू हैव 5+ क्लाइंट्स, यू हैव रिव्यूज, यू हैव टेस्टिमोनियल्स, अपनी प्राइस बढ़ा दें, ठीक है। जब क्लाइंट इस चीज़ को भी देखता है कि इसकी प्राइस इतनी कम है, तो वहाँ से सिग्नल हो जाता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। ट्राई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, अपवर्क, फाइवर, ठीक है। आउटरीच ये होता है कि आपने अगर लोगों को आउटरीच किया ना, मुश्किल तो ये होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जितने भी पैसे हैं वो आपके पास सारे खुद ही आते हैं, आपको प्लेटफॉर्म की फीस पे नहीं देना पड़ता, और फिर आपकी वो ट्रस्ट बिल्ड होता रहता है, कोई भी आपके पास आ सकता है, ठीक है। मेरी रिसोर्सेस क्या थी फॉर ऑल ऑफ दिस, स्किल्स के लिए, आउटरीच के लिए तो कोई स्पेसिफिक नहीं थी, एज आई टोल्ड यू गाइस के आई जस्ट वेंट इनटू इट, मैंने काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। मेरी रिसोर्सेज, मैंने यूट्यूब से लेक्चर्स लिए थे, लास्ट ईयर मैंने एक्सेल का शुरू किया था, फिर मैं पावर बीआई की तरफ गई, लुकर जो है वो आपको पावर बीआई तो वो तो आ ही जाता है, पाइथन और एसक्यूएल के भी मैंने यूट्यूब लेक्चर्स लिए थे यूनिवर्सिटी में बैठ के। फिर मैंने डेमो डेटा पे प्रैक्टिस किया था, ठीक है। आई यूज्ड केगल फॉर इट, और मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने कोई भी कोर्सेस नहीं किए, ठीक है। And biggest mistakes, as I said, being stuck at one platform only, not optimizing. और one thing is, if you are doing outreach, अगर आप Upwork पे भी हैं और आपने 2 proposals दिए हैं और आपको जवाब नहीं आया, तो taking no as the ultimate answer, it won't take you anywhere. ये ऐसी चीज़ है कि इसमें लोग no आपको बहुत दफ़ा बोलेंगे, ठीक है। So you have to keep on going. Make projects, make demos, make demos, and then post it somewhere on your Instagram or somewhere. And अगर आपके पास कोई है जानने वाला, आप उसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी नहीं है, you guys can make projects and tag me on Instagram and I'll tag you back, I'll give you testimonials as well. कोई भी, जैसे वीडियो एडिटिंग की मैंने आपको एग्जांपल दिया है, कोई भी चीज़ उठाएं, ठीक है, वीडियो उठाएं, उसको एडिट करें, इन द स्टार्ट क्लाइंट को जाकर पिच करना ना शुरू करें, अभी सिर्फ उसको एडिट करना शुरू करें, ठीक है। आपको पता लगे कि अच्छा इस टाइप की वीडियो एडिटिंग यूज होती है, फिर मैच करें उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Yeah, sure, I will in the end. Okay. About one more question. It's over here though. Let me read it out loud. अच्छा, मैंने जो आप लोगों को बताया कि 2 months of building, एटलीस्ट अपने स्किल्स को आपने 2 महीने देने हैं, मैंने वैसे 4 महीने लगाए थे, लेकिन एटलीस्ट आपने अपने स्किल्स को 2 महीने देने हैं। Does this sound too slow कि नहीं 2 महीने बहुत कम है, या आपको लगता है कि नहीं 2 महीने तो बहुत बहुत जल्दी है, ठीक है। और अभी क्या चीज़ कंफ्यूजन लगी है, द चैनल्स, अपवर्क, या जो डीएम के बारे में मैंने बताया है? एंड आई वांट समवन कि अपना माइक खोल के मुझे बताए प्लीज। एनीथिंग कंफ्यूजिंग? और जो मैंने 2 months के आउटरीच के बारे में बताया है, इज इट टू मच, बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम है? द टीएम्स, ओके। एनीवन एल्स प्लीज, द अदर पीपल एज वेल? ज़ैनब, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? Anyone else? Okay, I'll tell about the DMs. Okay. About the DMs. Let me go back. Okay. For example, अभी मैंने content creation start की है, okay, और मैं content creation in sense कि I'm posting about my workshops, the meetings I'm having with the clients, the meetings I'm having with the founders, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, stories वगैरह मैं post कर रही हूँ। I have very less followers though, ठीक है, so I'm posting stuff like that, और मुझे लोग message करें कि मैं आपके लिए video editing कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ, आई रियली वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम। दिस इज समथिंग कि आपने किसी को देखा है कि वो इस नीच में काम कर रहा है और आप उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उसको जाके मैसेज करते हैं, ठीक है। अब उस मैसेज में भी दे आर कोल्ड, वार्म एंड रिप्लाई टू स्टोरी। कोल्ड इन सेंस कि जो मुझे आके मैसेज करा, मैंने उससे कभी इंटरेक्ट भी नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, ठीक है।
वार्म इज कि मेरी उससे पहले बात हुई भी है, शायद उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है मेरी किसी वेबसाइट पे कि वेबसाइट बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है, या मेरे काम के बारे में पूछा है कि अच्छा आप करती क्या है, इस तरह की कोई भी चीज़। रिप्लाई टू स्टोरी है समथिंग कि मैंने कोई स्टोरी लगाई है और उसका रिप्लाई है। अच्छा, अगर आपने ये स्टार्ट करना है ना आउटरीचिंग, वन थिंग टू रिमेंबर इज कि जब आप लोगों को आउटरीच कर रहे हैं ना, ठीक है, तो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी चीजें लगाई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने लगाया हुआ कॉफी के बारे में, डोंट गो अहेड एंड से दैट आई एम आल्सो कॉफी लवर, ओके, इट्स नथिंग बैड इन इट, इट्स लाइक देयर इज नथिंग बैड इन इट, बट द थिंग इज कि वो फिर आप जब फिर एकदम से अपनी सर्विसेज पिच करेंगे ना, तो वो बहुत अजीब सा आएगा, ठीक है, कि पहले तो ये मेरे से बात कर रहा था एज अ फ्रेंड एंड नाउ डायरेक्टली टूवर्ड्स द सर्विसेज, तो वो जितनी भी स्टार्ट में बात की थी इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो आपने जब बात करनी है ना, तो जो प्रॉब्लम आप उनकी सॉल्व कर सकते हैं उससे रेलेवेंट जाके आपने मैसेज करना है, ठीक है। उसके रेलेवेंट जाके या तो आपने कॉम्प्लीमेंट देनी है या तो आपने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। फिर 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपको जब आंसर्स आएंगे तो फिर आप बता सकते हो कि दिस इज समथिंग दैट आई सॉल्व। ये होता है रिप्लाई टू स्टोरी। कोल्ड में भी आपको रिप्लाईज मिल जाते होते हैं। द गाय आई टोल्ड यू, द वीडियोग्राफी गाय हु इज इन पाकिस्तान, ही गोज कोल्ड दो एंड ही गेट्स अ लॉट ऑफ रिप्लाईज, ठीक है। ये भी चीज होती है। फिर मैंने एग्जांपल दी थी कि शी वाज समवन हु स्टार्टेड अ बिजनेस अबाउट स्क्रब्स, ठीक है, एंड शी टोल्ड मी अ लॉट अबाउट हर प्रॉब्लम्स के लाइक मैंने बात ही की थी, देन शी ओपनड अप कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, शी इज ऑल अलोन, शी हैज जस्ट स्टार्टेड इट एंड ऑल, एंड आई थॉट दैट जनरली माय डैशबोर्ड can be useful for her. So I made it. I sent the email to her, and you guys can see that I'm talking like this. It means that हम मेरी पहले ही बात हो चुकी हुई है, ठीक है. And then she also said that now I'm excited. And ultimately, then I said कि you need a website as well. I just suggested. मैंने कभी भी force नहीं किया किसी को. And she said that yeah, she needs a website. फिर मैंने बताया कि we do it. We hopped on a call with her. हमने एक demo website already बनाई हुई थी उसके लिए. जो जो चेंजेस उसको चाहिए थे हमने दिखाए और अल्टीमेटली वी क्लोज्ड दिस क्लाइंट, ओके। दिस इज व्हाट आई मेंट बाय डीएम्स में फिर कोल्ड ईमेलिंग भी आ जाती है कि आप लोगों की ईमेल ढूंढ के उनको बताते हो कि मेरी ये सर्विसेज हैं। उसमें भी पर्सनलाइज्ड ईमेल्स, ऑलवेज पर्सनलाइज्ड, वेदर इट्स डीएम्स और वेदर इट्स ईमेल्स। और अगर आप कॉल भी कर रहे हो ना किसी को, आपने गूगल से नंबर लिया और आपने कॉल किया, मेक इट पर्सनलाइज्ड एज वेल. Take 10 seconds, go through the client's profile, okay? Is there any confusion left in this? This is something ये बहुत डेप्थ वाला है टॉपिक, बट मैं उसके ज़्यादा उसमें नहीं जा सकती क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है. एंड दिस वाज mainly about Upwork. Any more questions about? Somebody said that graphic designing की डिमांड एज आई सेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है. हर चीज़ में ग्राफिक डिजाइनिंग यूज होती है, बट अगेन AI जनरेटेड ग्राफिक डिजाइन भी आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है, अपना प्रॉम्प्ट कितना अच्छा दिया है, ठीक है. वो AI भी काफ़ी अच्छा बना सकता है, बट ह्यूमन टच हर चीज़ में ज़रूरी होता है, ठीक है. तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की आपको एग्जांपल दी है. इवन तो AI आ गया बट स्टिल पीपल आर यूजिंग इट, एंड दैट इज समथिंग. जब मैंने भी अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी तो मुझे भी थोड़ा बहुत लाइक सीखना पड़ा था, ओके. देन ओके, this is my favorite part. I wouldn't want any of you to drop your skill or any idea and मैं उसको live workshop करूँगी, ठीक है. That is why I stopped 2025. I don't remember the roll number, but from mechanical engineering who talked to me. Was it you? Roll number 144. So किसी ने भी अपना कोई स्किल शुरू किया है, जिन्होंने पहले बात की है या कोई नया, टेल मी अबाउट इट एंड आई वर्कशॉप के क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. हो सकता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी ना पता हो, ठीक है. तो लाइव में उसको वर्कशॉप करूँगी यहाँ पे विद समवन ऑब्वियसली. सो एनीवन who would like to participate or the one who participated before as well, SolidWorks के बारे में जिसने बताया था. Guys, this is an interactive session, please. And I'm like going to be in my 3rd year, by the way, so I'm your fellow.
Anyone? Who is the one who told me about SolidWorks? So is he here? I don't. Oh, okay. Anyone I'm else? here. आ गया हूँ। आप थे जिसने मुझे बताया था? चैट कैसे खुलती है? जी जी ओके। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे, मतलब अपने SolidWorks का? आपने तो मुझे फाइवर के बारे में बताया, राइट? तो आपने कब स्टार्ट किया था वो? समर ब्रेक के स्टार्ट में। वैसे जो है सॉलिड वर्क जो था वो मैंने तकरीबन जो है सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट में स्टार्ट कर दिया था मैंने। और क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट के रिलेटेड था और मेरा इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की तरफ है, तो मैं मैकेनिज्म भी उसके रिलेटेड बनाता था ताकि मुझे बाद में इंटर्नशिप और जॉब के हवाले से मेरे पास ना एक पोर्टफोलियो हो एक तरह से। तो बाद में जब स्टार्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा मैंने, क्योंकि इंटेंसिटी स्टार्ट में काफ़ी अच्छी थी, मेरा शौक था। उसके बाद जब मैं फाइवर पे गया और बहुत सारी अजीब चीज़ें देखी, मैंने कहा नहीं, मैंने उसके बाद प्रोफाइल बनाई ही नहीं थी, वहीं पे छोड़ दी थी। उसके बाद जो है वो सॉलिड वर्क्स भी मैंने उतने अच्छे से नहीं सीखा, बस रोज़ाना के तौर पे 1-2 मॉडल्स बनाता था और फिर वो जो है लिंक्डइन पे अपलोड करता, बस यही था। अब जो है वो सोच रहा हूँ कि दोबारा से स्टार्ट किया जाए। जी, तो आपने कहा कि मैंने फाइवर पे जाके अजीब सी चीजें देखी थी। क्या थी वो अजीब सी चीजें? मतलब जैसे कि एक मैंने बंदे की सुनी थी कि उसने कहा था कि आपके पास ना अगर एक अकाउंट नहीं है ना, क्योंकि बाहर जब आपको पेमेंट होती है तो आपके पास एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आप अपना जो है ना वो पैसा जो है वहाँ पे सेव कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। ओके। और मेरे पास कोई अच्छी सी गाइडेंस भी नहीं थी कि भाई फाइवर काम कैसे करना है इस पर। बहुत सारा फियर भी था कि व्हाट इफ के अगर मैं मॉडल ना बना पाया, या क्योंकि मैंने कभी यूज ही नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लाइक हाईलाइट की थी पहले भी कि जब मैंने कोल्ड कॉलिंग की थी ना, अगर मैं थोड़ा सा स्टोरी के डेप्थ में जाऊँ, जब मैंने मैन्युफैक्चरर्स को कोल्ड कॉल की थी और मैंने अपने सीनियर से पूछा था कि मैं फोरकास्टिंग का ये सिस्टम बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि ना मैंने कार डीलर्स का आउटरीच की, फिर मैंने बुटीक ओनर्स की आउटरीच की, ठीक है, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं। और उसका भी मैं बताऊंगी आगे कि कार डीलर वाले डैशबोर्ड का असल में हुआ क्या, ठीक है। तो मैंने ना अपने सीनियर को कॉल किया एंड आई आस्क्ड हिम एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड लेक्चरिंग मी कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी लाइफ और बिजनेस लाइफ बहुत अलग होती है, क्योंकि बिजनेस में आपको कंप्यूटर के आगे बैठा दिया जाता है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप चीज़ सॉल्व करोगे। यूनिवर्सिटी में आपको थ्योरी ही सिखाई जाती है। और वाकई जब मैंने आउटरीच भी शुरू की थी, और मुझे जब मैंने कार डीलर के डैशबोर्ड बनाया था तो मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम सोच के अपने जहन में रखा था, पर जब मैंने उनसे जाके कांटेक्ट किया तो मुझे पता लगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई फिटनेस कोच है, ठीक है, वो अपनी फिटनेस कोचिंग जो है वो उन लोगों को भी बेच सकती है जो हेल्दी हैं, जो अंडरवेट हैं, जो ओवरवेट हैं, जो वैसे ही अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को अलग बेच सकती है, जो मॉम्स होती हैं घर पे उनको अलग, ठीक है। तो आप अपने एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से दूसरे लोगों को बेच सकते हो। दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज्ड जब मैंने खुद जाके उनको अप्रोच करना शुरू किया था। ओके, फिर मुझे ये नहीं पता था कि उनके पास ऑलरेडी एक सिस्टम है। जब मैंने डैशबोर्ड बना तो दिया, लेकिन जब मैंने बात की तो मुझे पता लगा कि नहीं, इनके पास ऑलरेडी, जहाँ से मैंने इनको निकाला था वहाँ वही वेबसाइट उनको सिस्टम भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सो द थिंग इज कि आप इसके बारे में जब करेंगे ना, मैंने कहा कि आप किसी की भी कोई प्रॉब्लम उठाएं, नेट पे जाएं, लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स रेडिट पे भी लिखी होती हैं, उसको उठा के सॉल्व करने की कोशिश करें, कुछ डिजाइन करने की कोशिश करें। फिर जब आपको मुश्किलें आएंगी ना बीच में, आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं ऐसा होता है। और आपने प्रोजेक्ट्स बनाए भी है, यू टोल्ड मी कि आपने इंजन बनाया था, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट आई वुड encourage you कि आप वाकई अभी प्रोजेक्ट्स बनाएं एंड देन
शेयर इट विद पीपल, विद योर फ्रेंड्स और विद योर टीचर्स. आप अपनी टीचर्स को भी बीच में मिलाने की कोशिश कर सकते हैं. बाय द वे मैंने अपने 2 टीचर्स को मिलाने की कोशिश की थी, ठीक है, बोथ ऑफ देम घोस्टेड मी दो. दे बोथ ऑफ देम आर नॉट इन माय प्रोजेक्ट. ना उन्होंने मेरी कॉल्स उठाई, ना उन्होंने मेरे मैसेजेस देखे. तो आपके टीचर्स भी ऐसे करते हैं, दो होता है. हालांकि वो प्रोफेसर थे जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी गाइड करें. आई डोंट नो मेरी बारी क्या गलत हो गया. तो दिस हैपेंस एज वेल. ट्राई टू डू इट. एज पर वो जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है. पेमेंट मेथड, मोस्टली पेमेंट मेथड पाकिस्तान में पेपल तो चलता ही नहीं है. स्ट्राइप भी है, वो भी अगर हमने अपनी एजेंसी यूएसए में लॉन्च करवानी है तो उसके लिए भी स्ट्राइप है जो पाकिस्तान में नहीं चलता, ठीक है. डिफरेंट वेज हैं. फिर अगर आप उसके इंस्टाग्राम पे जाके पेमेंट मेथड देखना शुरू करो तो इतने ज़्यादा आते हैं और मोस्ट ऑफ देम इज़ नॉनसेंस. इंस्टाग्राम इज़ लाइक 98% नॉनसेंस. ओके. सो मेरा अभी यही है कि मैंने अपने अपवर्क अकाउंट को पेयोनियर के साथ अटैच किया हुआ है. मैंने अपना एटीएम बनवाया था. उनको जाके मैंने एक्सप्लिसिटली कहा था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए मुझे अपना एटीएम चाहिए, ठीक है. मेरा एटीएम बना. फिर मैंने अपना पेयोनियर अकाउंट बनाया, उस दोनों को लिंक किया. फिर जो मुझे पेमेंट डॉलर्स में आती थी वो डायरेक्ट मेरे पेयोनियर में अकाउंट में आ जाती थी और पेयोनियर अकाउंट में भी पाकिस्तानी रुपीस में ट्रांसफर होती थी और मैं आराम से निकाल सकती थी, ठीक है. पेयोनियर से डायरेक्ट ही मेरे एटीएम में चली जाती थी. तो बस आपने पेयोनियर बनाना है. आई गेस फाइवर का भी यही सेम सिस्टम है. मैंने फाइवर कभी ट्राई नहीं किया दो. आई वाज ऑन अपवर्क. तो पेयोनियर इज समथिंग दैट आई विल आल्सो राइट ओवर हियर दो. पता ही होगा आप लोगों को मोस्टली, ठीक है. दिस इज समथिंग कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्टार्ट में यूज करें. फाइवर पे भी ये होगा ऑब्वियसली, आई गेस होगा, और अपवर्क पे तो यही है, ठीक है. एंड आई वुड लव टू सी सम ऑफ योर प्रोजेक्ट्स एज वेल. मैंने भी अब बनाया था बट मेरा सॉलिड वर्क्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है. आई एम बेसिकली मोर टुवर्ड्स डेटा विजुअलाइजेशन. ओके. Yeah, one more question. मैंने आपको कार डीलर के बारे में दिखाया, वो तो आपको पता लग ही गया होगा सुन के कि वो मेरा फेवरेट डैशबोर्ड था जो मैंने कार डीलर्स के लिए बनाया था. उसको मैंने अपने थीम के अकॉर्डिंग भी बनाने की कोशिश की थी. तो मैंने कितने सेल किए होंगे डैशबोर्ड कार सेलर्स को? मैंने आपको मैसेजेस भी दिखाए हैं. एनीवन कैन आंसर मी दैट कि मैंने कितने सेल किए होंगे वो डैशबोर्ड? Anyone? Random number. Okay, more than 20. I want more answers, please. 20 to 30. Okay. Around 5 to 10. Anyone else? Okay. ये ज़्यादा हो गया. वैसे ये ज़्यादा हो गया. 50 to 60. Okay. Let me write down. Okay. 0. Not even 1. I sold not even 1 डैशबोर्ड. और मैंने अपनी समर के स्टार्ट में समर से पहले ही, फाइनल से पहले बल्कि वैलिड रिएक्शन मैंने अपने समर से पहले फाइनल के दौरान, फाइनल से भी पहले मैंने ये करना शुरू कर दिया था. इस पे काम मैंने करना शुरू कर दिया था, ठीक है. और फिर मैंने पूरे 1.5 महीना ईमेल्स भेजी, मैसेजेस भेजे, कॉल्स की, ठीक है. आई सोल्ड नॉट इवन 1 डैशबोर्ड. और लिटरली वो मुझे इतना प्यारा लगता है ना क्योंकि मैंने उस पर बहुत टाइम लगाया था, ठीक है. नॉट इवन 1. तो ये वो चीज़ें कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये होता है. एनजीओस का मैंने आपको बताया कि मैंने फ्री में उन लोगों को पिच किया, मुझे फ्री में भी कोई जवाब नहीं मिला, ठीक है. लाइक या मैसेजेस तो मैंने दे वर अराउंड लाइक 500 plus DMs and like a lot of emails and then cold calls as well. So messages were like so many. Okay. So but now I told you I'm part of an agency. Okay. We have meetings literally every day. I'm doing workshops.
Okay, then I have my Upwork profile. Upwork को मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा हुआ है बीच में, because I'm basically on this side now. हमने जो अपनी एजेंसी है उसकी वेबसाइट भी बनाई है और उसकी ऐप पे भी काम चल रहा है, ठीक है. और मतलब आई वुड से कि दिस इज समथिंग कि अगर आप रुक गए ना तो बस आप रुक गए. ओके, वैसे भी ट्रेंड चेंज हो रहा है. ट्राई टू इम्प्लीमेंट एआई इनटू एवरीथिंग एंड बस like just go. Okay, don't stop. और ऑब्वियसली जब आप पोस्ट करना शुरू करते हैं ना तो आप लाइक माइंडेड पीपल या जब आप इस तरह की चीज़ पे काम करना शुरू करते हैं तो लोग आपके साथ अटैच होते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली आपको मेंटोर की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपको बताए, क्योंकि थ्रू आउट दिस होल 14 months लाइक पूरे 1 साल के लिए आई डिड दिस सोलो. ओके, और आई एक्चुअली लाइक गेट इट व्हेन ही सेड अजीब सी चीज़ें मुझे समझ आ गई थी, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली वो इंस्टाग्राम वाली चीज़ हाईलाइट की है बीच में, क्योंकि ये चीज़ें देख के मैं इस लूप में फंस भी गई थी 2-3 महीने के लिए. एआई से भी बात करो ना तो नहीं समझ आती. सो यू नीड मेंटोर्स जिन्होंने गलतियां की हों, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि नहीं, नो तो मिलेगा ही मिलेगा. आप गलती भी करोगे, लोग आपको पोस्ट भी करेंगे, लोग आपके मैसेजेस रीड भी करेंगे. और इवन my founder though he told me that in the start उसको किसी ने बुलाया भी था, अपने ऑफिस में बकायदा बुलाया था. he went there, he pitched everything, he came back and he said क्या मुझे अपने डेटा सेंड करें and I'll start working, and guess what, he ghosted him. हालांकि he went to the office. So these are the things that will happen over here. But जो आपने 4 साल बाद ग्राइंड करना है, अगर आपको कुछ भरा चाहिए, start working on it now. Okay, काफी ज्यादा मोटिवेशन हो गई. Okay, yeah, and this is the mistake I made कि मुझे नहीं पता था कि उनके पास सिस्टम है या नहीं है. तो जब मैंने बात करना शुरू की तो मुझे पता लगा कि हर एक कार डीलर का अपना मसला है. किसी के पास वॉल्वो है सिर्फ, ही इज अ वॉल्वो कार स्पेशलिस्ट. किसी के पास डिफरेंट काइंड ऑफ कार्स हैं जिसके जल्दी बेचने का कोई इशू नहीं होता उसको, ठीक है. किसी को कोई जो है वो डेलिबरेटली अपनी प्राइस कम करता है. सो दीज आर द थिंग्स, एवरी पर्सन वर्क्स डिफरेंटली. जैसे सप्लाई चेन का भी मैंने इसीलिए पहले कॉल्स की थी सबको, ताकि मुझे पता हो कि असल में प्रॉब्लम क्या है. आप 10 लोगों से पूछें, अगर उसमें से 6 कहते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. बस फिर भी अपनी रिसर्च साइड बाय साइड रखें, ठीक है. That's the end of the workshop though. This is my Instagram page. As I said, मैंने अभी start किया, सिर्फ 25 followers हैं, ठीक है. This is the agency I work in, and this is my QR code. I'll write my number down as well if you guys want to ask any questions. I have my own workshops as well. Okay, if you guys have any questions, want to ask anything, tag me while you're making something. Feel free to reach out. Okay, I'm a very friendly person though. So this session, I hope, yeah, I will send it over here as well. Let me I'll send my number. This Nadeem. Okay, you guys can feel free to contact me. Okay, and अगर किसी को कोई भी question है, you can ask right now. Anyone has any questions or remarks about this session के कितना boring था, anything. अगर कोई बोल नहीं सकता तो आप chat में भी लिख सकते हैं. It was quite informative. You explained everything very well. Thank you so much, Wajiha. Thank you, everyone. And I'll end the session over here, okay? And anyone who has any questions regarding anything, I have my own workshops as well. You guys can come to my workshop and text me over there, okay? Thank you so much. Allah Hafiz. I'll end the session over here. Okay, thank you. Okay, Allah Hafiz, everyone.